Hello friends, once again welcome to my YouTube channel. Now we are going to discuss some more important properties of inverse Laplace transformations. One of the important property is inverse Laplace transform of the derivatives, and the second property, which is one of the most important property of the inverse Laplace transformation, is inverse Laplace transform of integral. And those two properties of inverse Laplace transform are analogy of the Laplace transform of derivative as well as the Laplace transform of integrals. So here you can see, first of all, the first is the inverse transform of derivatives. If L inverse means inverse Laplace transform of Fs is equal to Ft, then Fs, nth derivative of Fs with respect to x, the inverse Laplace transform of this means inverse Laplace transform of nth derivative of Fs with respect to s is equal to minus 1 to the power n into t to the power n into ft, and this formula is valid for n is equal to 1, 2, 3, 4 and so on. Clear? The second, and we have already written a sentence, this is the analogy of the Laplace transform of derivatives. Analogy means similar. This is the similar result for the Laplace transform of derivatives as we have discussed before. And the second one is inverse transform of integral. And what is this? You can see, if L inverse of Fs is equal to Ft, then in L inverse, matlab inverse Laplace transform of Fs upon S is equal to integration of Ft with respect to t over the limit 0 to infinity, and this is also the analogy of the Laplace transform of integral. Means if you know the formula, the property related to the derivatives and integral in Laplace transform, you can also write the property as well as you can see the formula of the inverse Laplace transformation of derivatives and integrals. So it is these two properties are so simple, and you can realize that if you know about these two formulae in Laplace transformation, it is just similar to in inverse Laplace transformations. So you must have to know these two properties and then you go to the problem sections. Before knowing this property of inverse Laplace transformations, you don't have able to solve lots of problems which are related to this property. So first of all, we have to know the property like this and use the properties in problems which are related to this property. So the next section is we are going to discuss some related properties of these two. We are going to discuss some related problems of these two related property. ठीक है, तब तक इसको देखिए, इसको एक बार रीडिंग कीजिए, मैं फिर क्वेश्चंस लेके आता हूं. ठीक है, एक है आपका इनवर्स ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव और दूसरा है आपका इनवर्स ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल. ओके, hello friends, you can see a question of the inverse Laplace transform. So here we have to find the inverse Laplace transform of e to the power minus cs upon s square into s plus 1. S plus a. If you see first time, that you can realize that this is the complicated questions.
but if you use the related property of inverse Laplace transformations, you can easily find out its solutions. So don't worry about this, and let us see how can we solve this type of problem, that is how can we find its inverse Laplace transformation. So let us see. Here we can write solution. First of all, this is the function of s. So let us suppose that this is gs. This is capital GS. So GS is equal to e to the power minus cs upon s square into s plus a. ठीक है, अब क्या करते हैं, e to the power minus cs को हटा के बाकी जो टर्म बच रहा है उसको हम लोग fs मान लेते हैं. लेट कैपिटल fs is equal to 1 upon s square into s plus a, एंड और फिर 1 upon s स्क्वायर को हटा के हम लोग उसको f1s मान लेते हैं. तो f1s इज इक्वल टू हो जाएगा 1 बाई s प्लस. इतना तो आप कर ही सकते हैं. चलिए अब हम क्या करते हैं, उसके बाद हम लोग इनवर्स लैप्लास निकालते हैं f1s का. तो f1s का इनवर्स लैप्लास मतलब इनवर्स लैप्लास ऑफ 1 बाई s प्लस a, और हमको पता है कि 1 बाई s प्लस a का इनवर्स लैप्लास हो जाता है e to the power minus a, and this is equal to f1t. आप ऐसा कर सकते हैं, ऐसा मान सकते हैं, बगल में लिख लो. उसके बाद क्या करोगे आप, therefore इनवर्स लैप्लास ऑफ f1s by s करते हैं. f1s by s करने का मतलब इनवर्स लैप्लास ऑफ कितना हो जाएगा 1 by s into s plus a, और क्योंकि यहाँ हम डिवाइड कर रहे हैं इसका मतलब हम लोग इंटीग्रल वाला फॉर्मूला यूज करेंगे. तो इंटीग्रेशन हो जाएगा किसका, तो f1t का इंटीग्रेशन हो जाएगा t के रेस्पेक्ट में, और इंटीग्रेशन का लिमिट हो जाएगा 0 to infinity. कहां से आया, बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ क्या, इनवर्स ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल. ये कहां से आया, बाय इनवर्स ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल्स, जो कि अभी आप जस्ट देखे हैं. चलिए अब f1t कुछ निकालेंगे e to the power minus a, उसका हम लोग को इंटीग्रेशन करना है. कहां से कहां तक, तो 0 to infinity. तो बोलो कितना हो जाएगा, हो जाएगा e to the power minus a t डिवाइडेड बाय माइनस a, और लिमिट कहां से कहां तक, तो 0 to infinity. जब इंफिनिटी डालेंगे तो हमको पता है ये 0 हो जाएगा, और जब 0 डालेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1, तो अल्टीमेटली हो जाएगा प्लस, दिस हो जाएगा 1. ठीक है, तो यहां तक आप देख सकते हैं. फिर इसके बाद हम आगे बात करते हैं. सॉरी 0 to t है ना, तो यहां हो जाएगा इंफिनिटी जब डालेंगे तो e to the power माइनस इंफिनिटी मतलब 0, और ये हो जाएगा आपका e to the power सॉरी इंटीग्रेशन जो है वो यहाँ 0 to t है. दिस इज द फॉर्मूला. सो इन प्लेस ऑफ इंफिनिटी वी हैव टू राइट t. दिस इज इक्वल टू t, और ये कितना हो जाएगा, तो जब t डालेंगे तो हो जाएगा कितना तुम्हारा, तो हो जाएगा e to the power minus at, ऑलरेडी माइनस था, और जब हम फिर 0 डालेंगे तो हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, हो जाएगा प्लस, ये ऑलरेडी यहाँ माइनस होगा, और ये हो जाएगा 1 बाई a. ठीक है, तो अल्टीमेटली कितना हो गया, 1 बाई a कॉमन ले लीजिए, हो जाएगा 1 माइनस e to the power माइनस at. यही आपका क्या है, f1s बाई s का क्या हो गया, इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन. एक काम करो, इसको आप f2t मान लो. क्लियर. चलिए अब क्या करेंगे, फिर इनवर्स लैप्लास निकालते हैं किसका, तो f1s अपॉन s स्क्वायर करने का मतलब ये f1 बाई s का तो हम लोग निकाल चुके हैं, तो ये इनवर्स लैप्लास हो जाएगा 1 बाई s इंटू एस स्क्वायर इंटू एस प्लस a का.
और दिस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं ये इंटीग्रेशन हो जाएगा 0 to t और ये f2t, तो दिस इज f2t dt, तो हो जाएगा 0 to t और ft2t कितना है मेरे पास 1/a 1 minus this, तो हो जाएगा 1/a 1 minus e to the power minus at और ये हो जाएगा। क्लियर? चलिए जो कांस्टेंट है उसको बाहर करो, 1/a बाहर, 1 का इंटीग्रेशन t और माइनस e to the power minus at डिवाइडेड बाय माइनस, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक, तो 0 से लेकर के। क्लियर? चलिए तो अल्टीमेटली हो जाएगा 1/a और जब हम t पुट करेंगे तो हो जाएगा t माइनस e टू दी पावर माइनस at डिवाइडेड बाय माइनस a, और माइनस जब हम 0 पुट करेंगे तो 0 माइनस हो जाएगा 1 बाई माइनस a तो 1 प्लस a हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपका जो आया वो कितना आ गया, आप वर्कआउट कर सकते हैं, हो जाएगा 1/a यहाँ पे प्लस, तो हो जाएगा t प्लस e टू दी पावर माइनस at डिवाइडेड बाय a, और यहाँ हो जाएगा माइनस 1/a। कितना आया आपका, अब यहाँ तक देख सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आप देख चुके हैं यहाँ पे कि जब हम f1s अपॉन s स्क्वायर का इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल रहे थे तो मेरा जो आंसर आया था वो था आपका 1/a t प्लस e टू दी पावर माइनस at अपॉन a माइनस 1/a, और इसको मैंने f1t मान लिया। बट मेरा जो क्वेश्चन है वो था आपका gs, और gs है आपका e टू दी पावर माइनस cs अपॉन s स्क्वायर इंटू s प्लस a। तो इसका आपको इनवर्स लैप्लास निकालना है, मीन्स आपको सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी का यूज करना पड़ेगा, और हम लोग लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं कि सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी का यूज हम लोग कैसे करते हैं। ठीक है, तो हेंस बाय यूजिंग द सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी ऑफ ILT मींस इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म, यू कैन सी द इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e टू द पावर माइनस cs into fs is equal to ft minus c into ut minus c, where ut minus c is the unit functions or heavy side functions। so जहां जहां भी t था वहां पे मैंने क्या रखा, t माइनस c रख दिया, तो यहाँ t माइनस c है आपका, ये आपका फाइनल आंसर हो गया। चलिए हम लोग अब एक नया क्वेश्चन देखते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है आपका, कह रहा फाइंड द इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ s अपॉन s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, लेकिन हमको लग रहा है कि हम लोग जो पढ़े हैं वो था 1 अपॉन या s अपॉन s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, लेकिन एक्स्ट्रा में होल स्क्वायर, और हमको पता है u बाई v के टर्म में रहता है, और जब हम डिफरेंशिएट करते हैं तो v का स्क्वायर हो जाता है। मीन्स 100% यहाँ डेरिवेटिव वाला कॉन्सेप्ट का यूज हम लोग करने जा रहे हैं। ठीक है, तो जो क्वेश्चन था इसको gs मान लिए, गिवन है gs इक्वल टू दिस, और fs जो है इसको मान लिए। ठीक है, हम s अपॉन भी मान सकते हैं क्योंकि हम उसको s के टर्म में डिफरेंशिएट करेंगे तो 2s मेरा अपने आप आ जाएगा, s मेरा आ जाएगा, इसलिए यहाँ a अपॉन s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर लिखेंगे। ठीक है, ये आपको क्लियर होना चाहिए क्योंकि इसका हम डेरिवेटिव करेंगे तो s खुद ऊपर आ जाएगा, इसलिए s अपॉन s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर मतलब हम लोग cos वाला नहीं चूज करेंगे, हम लोग साइन के लिए चूज कर रहे हैं। ठीक है, तो देयरफॉर L इनवर्स ऑफ fs मतलब लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ fs इज इक्वल टू लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ a अपॉन s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। इसका हमको पता है ये साइन at का लैप्लास ट्रांसफॉर्म, और इसको आप मान लो ft। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि इसको डिफरेंशिएट करके देखते हैं ना, जरा सा आप dfs बाई ds करके देखिए कितना आता है। dfs बाई ds करते हैं तो हो जाता है डिफरेंशिएशन ऑफ a अपॉन s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू s, तो ये हो जाएगा आपका s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का होल स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा आपका s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इंटू a कांस्टेंट टर्म है तो हो जाएगा 0 माइनस अभी a रहने देते हैं, और s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर कितना हो जाएगा 2s प्लस 0।
तो अल्टीमेटली कितना हो गया -2as अपॉन, ठीक है, s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का होल स्क्वायर। मतलब इस टर्म का डेरिवेटिव अगर आप कर रहे हो तो इतना आ जाता है। तो आप ही बताइए, देयरफॉर हमको कितना चाहिए, s अपॉन s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। तो अल्टीमेटली कितना हो जाएगा, L इनवर्स ऑफ कितना चाहिए, GS। तो GS का अगर हमको डेरिवेटिव चाहिए और GS का कितना है देखो, तो L इनवर्स ऑफ S अपॉन S स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, ठीक है, का होल स्क्वायर, यही है आपका GS। और जो GS है उसको हम लोग लिख सकते हैं, कितना लिख सकते हैं, देखो तो इसको हम लिख सकते हैं L इनवर्स ऑफ -1/2a और ये हो जाएगा dfs बाई ds। जरा सा गौर कीजिए, ठीक है, ये आपका कांस्टेंट टर्म है तो जस्ट बाहर हो जाएगा, तो ये कांस्टेंट टर्म बाहर, मतलब -1/2 के बाहर और L इनवर्स ऑफ dfs बाई ds हो जाएगा। और अभी जस्ट हम लोग एक प्रॉपर्टी पढ़े हैं, इसका हम लोग यूज कर सकते हैं। तो आप ही बताओ कितना हो जाएगा, -1/2a -1 टू द पावर n, क्योंकि ये फर्स्ट डेरिवेटिव है, इंटू टी के पावर 1 इंटू क्या हो जाएगा, इंटू एफ टी। तो यहाँ देखिए इंटू एफ टी, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो 1/2a इंटू टी और ये हो जाएगा साइन, कितना हो जाएगा, साइन ए टी हो जाएगा। तो ये जो आपको दिख रहा है दैट इज द फाइनल आंसर, दैट इज द फाइनल इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ द गिवन फंक्शन s अपॉन s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्लियर, कितना कितना इजी है, आप देख सकते हो किस तरह से हम लोग इंटीग्रल, ट्रांसफॉर्म और डेरिवेटिव वाला जो फॉर्मूला है उसको हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, तो इसको एक बार ध्यान से देखिए, आपको रियलाइज हो जाएगा कि किस तरह से हम लोग इस तरह के क्वेश्चंस को डील करते हैं। ओके, अब हम एक नए क्वेश्चन के साथ फिर आ रहे हैं। ये नीचे आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आप नीचे देख सकते हैं इस तरह से। हेलो फ्रेंड्स, you can see another question of inverse Laplace transformations. We have to find the inverse Laplace transform of log s minus 1 upon s. So first of all, use the property of logarithm to simplify the given expressions. So we can write this is gs and gs is equal to log s minus 1 upon s. And using the property of logarithm, you can write log s minus 1 minus log s. So अब हम जानते हैं कि अगर हम इस GS का डेरिवेटिव कर लें तो हमको क्या मिल जाएगा। तो एक काम करते हैं, therefore fs is equal GS का डेरिवेटिव करते हैं s के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो GS मतलब ये है, तो इसका डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 1/s minus 1 और log x का हो जाएगा 1/s। ये आपका एफएस हो गया। अब हम क्या कर रहे हैं, इसका इनवर्स लैप्लास निकाल लेंगे। तो एफएस का इनवर्स लैप्लास जब निकालेंगे तो इनवर्स लैप्लास ऑफ 1/s minus 1, ठीक है, और माइनस इनवर्स लैप्लास ऑफ 1/s। इसका इनवर्स लैप्लास हो जाएगा e टू द पावर t और 1/s का हो जाता है -1। ठीक है, तो आपका जो है दिस इज ft, ये आप इसको ft कर सकते हैं, बाजू में लिख लीजिए, कोई दिक्कत, यहां तक आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। लेकिन हमको जो है क्या करना था, जीएस का निकालना है। तो यहां देखिए जीएस का डेरिवेटिव हमको पता है, ठीक है, जीएस का डेरिवेटिव जो होगा वो आपका एफएस हो जाएगा। ठीक है, तो यहां डेरिवेटिव ऑफ जीएस लिखा गया है, तो यहां लिख सकते हैं देयरफॉर इनवर्स लैप्लास ऑफ एफएस की जगह में क्या लिखेंगे, dgs विथ रिस्पेक्ट टू s, कितना हो गया, और दिस इज इक्वल कितना आया है, तो दिस इज ft, फिलहाल इसको ft लिखो। ठीक है, चलिए, और क्योंकि gs fs जो है वो gs का डेरिवेटिव है, तो ये gs का डेरिवेटिव यहां हमको मिलेगा, जो कि आपका कितना आया, ft आया। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, यहां पर हम लोग फॉर्मूला लगा देते हैं, किसका,
तो जीएस के डेरिवेटिव का फॉर्मूला हम लोग यहाँ यूज कर सकते हैं। एक सेकेंड यहाँ तक आप देखिए, फिर आगे बात करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, थोड़ा सा चेंजिंग है। यहाँ मैंने जीएस माना था, बट यहाँ पे एफएस ले लेते हैं इसको, और एफएस आपका ये हो गया, और लॉग इसको प्रॉपर्टी से अलग अलग कर दीजिए। जब हम इसका डेरिवेटिव करते हैं तो डी एफ एस बाई डी एस और लॉग एस माइनस वन का हो जाएगा 1/s माइनस 1, और ये हो जाएगा 1/s। ठीक है, अब इनवर्स लैप्लास ऑफ एफ एस एस मतलब इसका इनवर्स लैप्लास करेंगे तो हो जाएगा, इसका हो जाएगा e टू दी पावर t माइनस 1 हो जाएगा, ये एफ टी। अब हम क्या करते हैं, अभी जो हम लोग प्रॉपर्टी पढ़े हैं, प्रॉपर्टी ऑफ इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म डेरिवेटिव वाला, तो यही तो प्रॉपर्टी था। अगर हम dfs by ds मतलब सिंगल डेरिवेटिव करते हैं और लैप्लास ट्रांसफॉर्म लेते हैं तो फार्मूला हो जाता था -1 माइनस दिख रहा है इनटू t इनटू ft। आप बताइए यही ना ft हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हमको fs का इनवर्स चाहिए, तो इतना हम लोग निकाल चुके हैं। l इनवर्स ऑफ मतलब इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ dfs by ds कितना निकाले थे यहाँ पे, ये हम लोग ft, और ft कितना आपका e टू दी पावर t माइनस 1। तो यहाँ पे क्या करते हैं, -1/t तो रहेगा, ft की जगह में क्या लिखेंगे, e टू दी पावर t माइनस 1, यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिए। तो ये जो आपका आ रहा है, यही मेरा क्या है, फाइनल आंसर। मतलब आपको जो है फार्मूला को रीअरेंज करने आना चाहिए। इस क्वेश्चन में यही किया है, यहाँ आपको फार्मूला को रीअरेंज कर दिया है, ठीक है। तो जब आपको फार्मूला रीअरेंज करने आ जाएगा तो बहुत सारा क्वेश्चन जो है आप बहुत ही सिंपल वे में उसको डील कर सकते हैं, बना सकते हैं, जैसा कि एक एग्जाम्पल यहाँ भी है, ठीक है। चलिए, तो और भी कुछ एग्जाम्पल्स हैं, एक से एक एग्जाम्पल्स हैं। तो इस क्या कहते हैं लेक्चर को मैं यही क्लोज करता हूँ, और फिर अगले लेक्चर में कुछ और इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस के साथ फिर मैं आपके सामने आता हूँ, और मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे हम लोग प्रॉपर्टी का यूज करते हैं इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन रिलेटेड टू डेरिवेटिव्स एंड इंटीग्रल्स। थैंक यू सो मच।